Now, first and the foremost thing, I wish everybody. I hope that everybody is safe in their home and houses. And second most important thing that I would like to tell you before we go ahead is that uh, see, all of you should try to now those who have been doing IELTS since last I mean 1.5 or 2 months probably, they should think of taking the dates probably 1 month after or something, because VFS of Canada has opened up. Let me reiterate, VFS, that is Visa Facilitation Service of Canada, has opened up. So this is a very positive sign for all of us, because when that shows that Canada is very positive in taking the students. So I wish that everybody should discuss if possible. I mean, with me, that when we should be taking the dates, I'll definitely guide them out. I also recommend and request each and every one of you to make sure that whenever you take the dates, at least give me a call before taking the dates. For example, today, 4 to 5 students gave me a call कि सर मुझे डेट लेनी है. When exactly could I take the date? At least I'll give you the possible time. I can contemplate the time for you, and we could then think of taking the dates. So please make sure that you take the dates before, I mean, you ask me before taking the dates. Clear? Okay. So let us get started, students. It's almost 8:33 according to my watch. Now, today's discussion is going to be a very fruitful one, because I'm also going to discuss thesis statement. Not only I'm going to discuss the essay topic, that we gave in the examination on Saturday, but we are also going to discuss how to write a thesis statement for almost all the types of essays. One last time, is my voice audible, everybody? Okay, great. Okay. Now, this was the topic given. This was the topic of Saturday's examination. Some people think that you need more money. And before I discuss this topic, all those students, who are basically, positive in learning new things, will be able to understand this regardless of how many lectures you attended before. अगर आप इसको पॉजिटिवली सुनोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी. ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो समझ में नहीं आएगी. डोंट वरी. Okay, the topic of Saturday was, some people think that you need more money to be happy, while others prefer to have free time and money. Free time than money. Discuss both views and give your own opinion. Now, इसका मतलब ये हुआ, काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि पैसे चाहिए आपको in order to remain happy or be happy, और काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि जिनके पास फ्री टाइम ज़्यादा है वो अच्छी बात है, दैट इज़ बेसिकली मोर प्रेफरेबल. Discuss both views and give your own opinion. तो यहाँ पे this is the essay type in which not only are you supposed to discuss both the views, but you're also supposed to give your own opinion. Let me tell you, डिस्कशन में दो टाइप्स के ऐसे आते हैं. डिस्कस बोथ व्यूज, और दूसरे टाइप का जो ऐसे आता है, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. नाउ here, it is very important for everybody to understand that when you are not required to give your opinion, it's not compulsory. You may still want to give the opinion, it's fine. बट मैं चाहूंगा कि अगर जहाँ पे डिस्कस बोथ द व्यूज है, तो फिर अपने ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा उसका थीसिस स्टेटमेंट विल डेफिनेटली चेंज. नाउ इसको हम कैसे लिखेंगे? आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक एवरीबडी. आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक दैट काफी लोग को पैसे ज्यादा पसंद है, एंड मेनी पीपल बिलीव दैट फॉर देम आई मीन फ्री टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके. नाउ आई गिव दिस essay format. I hope everyone has got this format. Has everyone got this format? In my lectures, I have given this format before. So if anyone is not having this format, एक lecture मैंने लिया था जिसमें सारे topics मैंने discuss किए थे. There is nothing to worry. Everything is going to be discussed once again. So don't worry about that part. But I gave this format to everyone. अगर आपका ऐसे है जिसमें discussion करना है and you are supposed to give your own opinion, then you can utilize this format. तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो. इफ यू डोंट हैव दिस फॉर्मेट, आई विल बी गिविंग इट टू यू. डोंट वरी, यू विल ऑल बी हैविंग दिस फॉर्मेट. यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर्मेट फॉर डिस्कशन एंड गिव योर ओपिनियन. तो कहीं पे भी डिस्कशन वाला ऐसे आता है, यू कैन यूटिलाइज दिस फॉर्मेट. Okay, so let me jump onto this format first of all straight away. Some people argue blah 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 this while others say that क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन ऐसे है तो दो व्यूज आते हैं. So you have to I mean you can start like this as well. Okay, although yeah, not an issue. You are, even if you're attending the format, don't worry. If you're attending the lecture for the very first time, you will still be able to understand everything. Don't worry.
एनीबडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर कोई बंदा पहली बार भी लेक्चर अटेंड कर रहा है उसको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेट मी टेल यू, दिस आर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर न्यू. Okay, some people argue that while others say that although the dash, I believe that this essay discusses both the sides of the argument followed by my perspective. So you can see the introduction. In introduction, there are three sentences. Can you tell me what is the first statement? The first statement is a generalized statement, or you can say it's a paraphrased statement. Everybody, please listen to this very, very carefully. In introduction, there are three sentences. This format is having three sentences. The first sentence is the paraphrasing. Paraphrasing का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे का जो टॉपिक है उसी चीज को आप अलग तरीके से लिखते हो, conveying the same meaning but in different sentences, different words. This is the most important statement. Although the second statement is considered to be the thesis statement. इसको हम thesis statement कहेंगे. And this third line is an outline statement. This essay discusses both sides of the argument followed by my perspective. Let me tell you, students, that this third statement is not compulsory. I repeat, the third statement is not compulsory in the introduction. Only the first two sentences are compulsory. Very, very important for you to note that. Then this is the beginning of your second paragraph. On the one hand, फिर this is important, उसको support किया. And finally a good example of this, I have concluded the second paragraph with the help of an example. Then I am writing the third paragraph. On the other hand, because आपने लिखा है पहले उसके आगे वाले पैराग्राफ में on the one hand, तो जाहिर है मैंने क्योंकि दोनों तरफ डिस्कस करना है तो आई एम राइटिंग ऑन द अदर साइड. दिस इज इंपॉर्टेंट, उसको सपोर्ट किया मैंने, या तो फिर इन अदर वर्ड्स दिस इज बिकॉज, एनी ऑफ दिस फ्रेजेस यू कैन राइट. अगर आपने यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में दिस इज इंपॉर्टेंट लिखा है तो यहाँ पे फिर दिस इज इंपॉर्टेंट मत लेना. यू कैन स्टार्ट विद इन अदर वर्ड्स और दिस इज बिकॉज और दैट्स व्हाई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर यहाँ पे आपने लिखा है गुड एग्जाम्पल तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. फॉर इंस्टेंस, सो जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट रिपीटिंग द सेम वर्ड्स. इन कंक्लूजन बोथ साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट हैव देयर मेरिट्स. ये भी आप देयर आर, आज मैं अलग अलग तरीके से कंक्लूजन कैसे फ्रेजेस से लिखा जाए, दैट इज ऑल्सो व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे. Writing conclusion in different ways is probably the first time that I am discussing, so everybody can take a note of that. Although it is true that yes, I believe that ऐसे करके ये फॉर्मेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो. I hope everybody is having this format. I mean, I hope everybody has understood this format. I am not saying that you should know how to use this format, but ये format कभी भी डिस्कशन एंड गिव योर ओपिनियन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो. मैं सारे बच्चों को ये कहना चाहूंगा, धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन रिड्यूस योर डिपेंडेंसी ऑन दिस फॉर्मेट. देखिए फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए जो आपको सिर्फ 2-3 वर्ड्स दे. बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस फॉर्मेट के इस्तेमाल करना, मैं अभी आई एम नॉट ऑफ द ओपिनियन. You can gradually reduce your dependency on format once you gain the experience. But for time being, if you're writing the essay for initially in the first part of your first phase of your IELTS, you can utilize this format. काफी ऐसे वर्ड्स है जैसे कि सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ और फर्स्ट पैराग्राफ, इसके फॉर्म ये तीनों तीन इस्तेमाल कर सकते हो. ये लंबे लंबे जो सेंटेंस है कंक्लूजन के, वो आपको ट्राई टू आई एम गोइंग टू गिव यू डिफरेंट फॉर्मेट्स एज वेल टुडे फॉर कंक्लूजन, ताकि आप उस फॉर्मेट्स का भी इस्तेमाल कर सको. Now see, I am utilizing this format over here. Now instead of writing जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, some people argue that while others say that, मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया यहाँ पे, बाकी सारी चीजों का इस्तेमाल किया है, but I have just changed it a bit. I repeat, टॉपिक ऐसे का टॉपिक ये था कि काफी लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है और काफी लोगों के लिए फ्री टाइम इंपॉर्टेंट है. दोनों व्यूज को डिस्कस करना है और आपको अपना अभिप्राय देना है, ओपिनियन देना है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Now here I have started with, it is an undeniable fact that both time and money are equally important for everyone. एक बहुत अनडिनाइबल जिसको आप नकार नहीं सकते, एक ऐसा फैक्ट है कि टाइम और मनी बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए. Now this is the most important statement of your essay, the second statement that I have written over here. See how long this statement is. और ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कहेंगे थीसिस स्टेटमेंट. आई रिपीट, जहां पे यू आर गिविंग योर ओपिनियन इज बेसिकली योर थीसिस स्टेटमेंट. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे ना सिर्फ मैं अपना आई एम राइटिंग अ थीसिस स्टेटमेंट, बट बिकॉज ऐसे ऐसा है जहां पे आपको अपना ओपिनियन भी देना है. आई एम ऑल्सो गिविंग माई ओपिनियन. सी, although many people believe that money is more important than free time to be happy, I am of the opinion that leisure time should always be given more priority over money.
आई रिपीट, तो मैंने कौन सा सिलेक्ट किया? आई सिलेक्टेड मनी और फ्री टाइम। यस एवरीबडी, आई होप एवरीबडी इज देयर। मैंने क्या सिलेक्ट किया? थीसिस स्टेटमेंट में लिखा, बट आई ऑल्सो गिव माई ओपिनियन, आई ऑल्सो गिव माई ओपिनियन कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि फ्री टाइम ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? कितना सिंपल है देखो। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ये बहुत सिंपल है। although many people believe that money is more important than free time to be happy, I am of the opinion, मेरे लिए आपको जो पसंद है वो सेकंड पार्ट में आ जाएगा। थीसिस स्टेटमेंट में आपको जो पसंद है, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग योर थीसिस स्टेटमेंट विद although, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ओपिनियन है शुड ऑलवेज बी इन द लेटर पार्ट। क्लियर? आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट लीजर टाइम शुड ऑलवेज बी गिवन मोर प्रायोरिटी ओवर मनी, सो आई हैव सिलेक्टेड लीजर टाइम। बट इसके लिए, उसके बावजूद, क्योंकि डिस्कशन वाला ऐसे है, आई नीड टू राइट ऑन बोथ द साइड्स, मुझे दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। ओके पहली बार ऑन द वन हैंड, ये जो डार्क बोल्ड वर्ड्स है, यही ऐसे जो ये जो फॉर्मेट मैंने दिया था पुराने वाले स्लाइड में, उसी फॉर्मेट का मैंने इस्तेमाल किया है, यूटिलाइज द सेम फॉर्मेट। ऑन द वन हैंड, शांति से सुनिए, मैनी प्रीफर मनी ओवर फ्री टाइम एज दे बिलीव दैट मनी कैन बाय एनीथिंग। This is because people have become more and more materialistic and opine मतलब वो अपना अभिप्राय मानते, opine that materialism can buy happiness. Is it getting clear? Okay. So what I mean to say is that काफी लोग ऐसा मानते हैं, for example, कि उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसे, क्योंकि अब लोग मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। मटीरियलिस्टिक का मतलब होता है भौतिकवादी, जिनको चीजों से बहुत लगाव होता है, और वो लोग ऐसा मानते हैं ये जो चीज हम खरीदते हैं, टीवी, कार, उससे हैप्पीनेस को हम बाय कर सकते हैं। अब देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन हु हैज मोर मनी कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम एक्सपेंसिव थिंग्स टू बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट। कोई भी आदमी जो है पैसे से एक्सपेंसिव थिंग्स भी परचेस कर सकता है, और अच्छी से बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट भी परचेस कर सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट, उसके विपरीत, a poor person might not get good medical treatment if he is sick, and hence they think that money can remove many difficulties from person's life and bring happiness. तो यहाँ पे हमने ये लिखा है, पैसों का फायदा क्या है? अगर इफ यू आर गिविंग मोर प्रायोरिटी टू द मनी, उससे फायदा ये है कि आप चीजों को खरीद सकते हो, और चीजें खरीदने से आपको हैप्पीनेस मिलती है, मेडिकल ट्रीटमेंट आपको बेहतर से बेहतर मिल सकती है। इन कॉन्ट्रास्ट, अगर कोई गरीब आदमी है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती, और उसकी जिंदगी में बहुत दिक्कतें आने की संभावना है। दिस इज वन ऑफ द ओपिनियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो चीज को सपोर्ट करते हो, यू नीड टू मेक श्योर दैट योर ओपिनियन शुड बी रिटन इन द थर्ड पैराग्राफ। आपने जो चीज को सपोर्ट किया है उसको हर वक्त तीसरे पैराग्राफ में लिखना जरूरी है, देन ओनली इट विल लुक बेटर। ओके, देन थर्ड, अब आएगा हमारा फ्री टाइम का फायदा क्या है। ऑन द अदर हैंड, आई ओपाइन दैट people should have more free time in order to get some relaxation from their daily routine so that they could spend time with their loved ones. मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आपको रिलैक्सेशन तो मिलेगा, और अपने डेली रूटीन से रिलैक्सेशन मिलेगा, और आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने लव्ड वंस, मतलब कि अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर पाओगे। This is also important to break monotony of day-to-day life, which can bring pleasure. और एक से एक, मोनोटोनी का मतलब एक चीज बार बार करना, उसको हम मोनोटोनी कहते हैं। तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा और आपको उससे आनंद मिलेगा। दैट मीन्स विच कैन ब्रिंग प्लेजर। नाउ दिस इज द एग्जांपल दैट आई हैव गिवन। ये एग्जांपल मैंने कल ही एक टेड का वीडियोस देखा था, उसके ऊपर से मैंने लिखा है। फॉर इंस्टेंस, a Harvard study of 75 years conducted on war veterans. In Harvard, university, there was a survey being conducted on war veterans. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग जिंदा बचे थे, और आज की तारीख में तकरीबन काफी बड़े हो गए होंगे, तो उनके ऊपर सर्वे किया गया था। तब वो जब वॉर में थे, तब लोग शायद 15-16 साल के थे, और बाद में अभी तक काफी उम्र हो गई थी, और उनका जेन्युइनली सर्वे हुआ था। एंड इट वाज फाउंड आउट, a Harvard study of 75 years conducted on war veterans right from their childhood to their death revealed, एक चीज उसने बताया, that people who spend time on the relationship not only live longer, but it also reduces their chances of being contracted with dementia and Alzheimer disease. आप बोलोगे सर ये क्या है? नाउ बिफोर आई गो इनटू दिस एग्जांपल, मैं सबको ये चीज कहना चाहूंगा। आपको शायद पता होगा कि देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड टेड सॉफ्टवेयर।
Do you know TED people? Yes, I always, whenever come to offline class, I always recommend my students to download TED software. Yes, anybody knowing about TED, TED, TEDs? Yes, TED, TED. सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू डाउनलोड टेड, TED, टेड, टेड करके आता है। हाँ, तो आप क्या करना, ऐप स्टोर में जाना, यू गो टू ऐप स्टोर, गूगल का ऐप स्टोर आता है। यस, टेड टॉक्स, यस दैट्स ट्रू। सो आई वो, ये आपको जानकारी है वो तो जान के अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने ऐप स्टोर में देखोगे तो टेड मिलेगा, TED, टेड टॉक्स। और उस टेड टॉक्स में काफी नॉलेजेबल चीजें मिलती है। यू विल नेवर फेस प्रॉब्लम्स के सर ये ऐसे में मेरे पास टॉपिक ही नहीं है, आइडियाज नहीं, वो कभी नहीं आएगा। जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ, ये आप देखोगे तो मैंने ये टेड का एक लेक्चर देख पढ़ा था, आई मीन सुना था रादर, बिफोर 2 days, just before yesterday, yeah. And this is basically an example that I have given over here, was based on the lecture that I mean listened 2 or 3 days before. तो मैं चाहूंगा कि इससे फायदा ये होगा, या इट इज, ये फायदा ये होगा उससे, मैंने भी आपको शायद भेजा था। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स की ये चीज आप सुनोगे ज्यादा, तो आपको एग्जाम्पल्स में ब्लफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं काफी बच्चों को देख रहा हूँ बहुत ब्लफ करते हैं, एग्जाम्पल ब्लफ कर सकते हैं, देयर इज नथिंग टू वरी, बट उससे क्या होगा, बहुत ब्लफिंग, क्योंकि बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं ब्लफिंग में एग्जाम्पल देने के लिए। मैं चाहूंगा हो सके तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दीजिए, और उससे ये होगा कब, व्हेन यू रीड मोर बुक्स, व्हेन यू रीड व्हेन यू लिसन टू लॉट ऑफ लेक्चर्स, आप अपने दिन में सिर्फ कम से कम 1 घंटा, यू कैन लिसन टू रीड न्यूज पेपर्स एंड यू कैन लिसन टू टेड टॉक्स। इससे भी आपका रीडिंग भी बढ़ेगा और राइटिंग भी बढ़ेगा। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दिया, देखो इट्स बेसिकली एब्सोल्युटली अ जेन्युइन एग्जांपल, मैंने इसमें ब्लफ बिल्कुल नहीं किया है। सो आई हर्ड टेड टॉक्स एंड आई एम गिविंग दिस एग्जांपल। और उसी एग्जांपल मैंने देखा कि जब वॉर वेटरन्स पे सर्वे हुआ था कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पैसे है या क्या है, तो उन्होंने ये सर्वे में ये पाया कि जो लोगों ने अपना टाइम स्पेंड किया रिलेशनशिप मेंटेन करने में, न सिर्फ अपने फैमिली के साथ बट अपने दोस्तों के साथ, वो लोग न सिर्फ ज्यादा जी पाए, दे नॉट ओनली लिव्ड लॉन्गर, उनकी लॉन्गेविटी काफी बड़ी थी। जैसे कि अगर आदमी लोनली है, बहुत पैसे है लेकिन लोनली है, उसकी कंपैरिजन में अ पर्सन हु इज बेसिकली मेंटेनिंग और गिविंग टाइम इन हिज रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड ऑल दोस पीपल, वो न सिर्फ ज्यादा जिंदा रहते हैं, बट उनका चांसेस कम हो जाता है डिमेंटिया और अल्जाइमर डिसीज को पकड़ने में। इंडिया में डिमेंटिया और अल्जाइमर डिसीज शायद बहुत कम है, बट व्हेन यू गो टू फॉरेन कंट्री, डू यू नो व्हाट इज डिमेंटिया एंड अल्जाइमर डिसीज? अल्जाइमर डिसीज का मतलब आपने देखा होगा 102 नॉट आउट, एक मूवी था जिसमें आदमी यू बेसिकली स्टार्ट्स पीपल स्टार्ट्स फॉरगेटिंग एवरीथिंग, आदमी सब कुछ भूलना चालू कर देता है बिकॉज वो लोनली रहता है। तो उसी के ऊपर से मैंने ये एग्जांपल दिया था कि अगर आदमी के पास टाइम है तो रिलेशनशिप पे वो स्पेंड कर पाएगा, तो उसकी जिंदगी भी बढ़ेगी, नंबर वन, एंड मोर इंपॉर्टेंटली उससे सबसे बड़ा फायदा होगा, यस एग्जैक्टली, और उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप जब तक जीते हो तब तब आपकी याददाश्त बिल्कुल सही रहेगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है, या इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के आई मीन मैंने एग्जांपल तो दिया है, बट इस एग्जांपल के माध्यम से आई वुड लाइक टू टेल ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि मैं चाहूंगा कि सारे लोग एक अच्छा सा फॉर एग्जांपल मेक एन हैबिट ऑफ लिसनिंग टू टेड टॉक्स, मेक एन हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। उससे आपको नेचुरली एग्जांपल्स डेवलप होंगे। आपको काफी बच्चे मुझे फोन करके पूछते हैं सर एग्जांपल्स आ नहीं रहे, क्यों, कहाँ से आएंगे, आप रीड ही नहीं करते, तो एग्जांपल्स कहाँ से आएंगे? Is it getting clear? Any doubts, any queries, students? So let us move on to the conclusion part. In conclusion, both sides of the arguments have their merits. Although it is true that money can buy anything from material things to happiness, ये सही है कि मनी सब कुछ परचेस कर सकता है। आई फर्मली बिलीव दैट वन शुड गिव, ऑलवेज गिव मोर एम्फेसिस, तो प्रायोरिटी के बदले मैंने एक अच्छा सा वर्ड का इस्तेमाल किया, एम्फेसिस, टू हैविंग मोर लीजर टाइम देन मनी टू स्टे हेल्दी एंड मेंटली हैप्पी। भले लोग ऐसा मानते हैं कि पैसे से अच्छी चीजें आप खरीद सकते हो, हैप्पीनेस मिल सकता है, लेकिन मैं हर वक्त ऐसा मानता हूं कि हमें प्राधान्य प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, टू लेजर टाइम, पैसे की कंपैरिजन में, ताकि आप हेल्दी और मेंटली हैप्पी रह सको। अब ये पूरा जो ऐसे है, इफ आई पुट इट दिस वे, इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। So the introduction is going to be is of 46 words and it is only of 2 lines. I repeat, introduction is of 46 words and it is only of 2 lines. Second paragraph जो है ये 3 लाइन का नहीं, ये 4 लाइन का है, but it is of 84 words. On the other hand, मतलब के third paragraph is of 95 words and it is only of 3 lines. Could you see that? The third paragraph is of 95 words and it is only of 3 lines.
and last paragraph is of 2 lines and there are 47 words. So in total there are 272 words और यहाँ पे 10 लाइन लिखी है, but it is not 10, it is 11 lines. Any questions, any doubts? Have you understood what I'm trying to say, students? Yes or no? Any questions on that? Have you understood the topic, everybody? Yes, clear हो गया? Very good, very good. So I want you people कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, you know, I mean very very important कि आप उस चीज का इस्तेमाल कीजिए. Okay, now yeah, now I am now going to tell you कि कैसे अलग अलग तरीकों से आप कंक्लूजन लिख सकते हो. You know, I gave you, you know, यहाँ पे आप देख सकते हो, you can see over here in conclusion both the sides of the arguments have their merits. ये आप लिख सकते हो, but उसके अलावा there are different ways of writing the conclusion. So it is very very important. Yeah, you can use that. Yeah, Krishna. Yeah, you can use that. Very nice. Okay, now let me tell you, there are very good ways. मैं चाहूंगा ये चीज को आप ध्यान से सुने, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कंक्लूजन में यू डोंट गेट द वेराइटी, इजंट इट? Usually you start the essay, you know, conclusion with in conclusion, to conclude, but I thought of giving you more variety in conclusion. इसको बिल्कुल ध्यान से सुने. In conclusion, I believe, I would argue that you can start your conclusion like this. या तो फिर इन द लाइट ऑफ एफोरसेड फैक्टर्स और एफोरमेंशन्ड रीजंस, मतलब ऊपर दर्शाए हुए रीजंस, आई एम कन्विंस्ड दैट, जैसे कि इस केस में लिखना, आई एम कन्विंस्ड दैट you know free time should always be given more priority in comparison to giving priority to or giving emphasis to money. वैसे करके you can start the conclusion. या तो फिर in conclusion, for the reasons I have mentioned above, I believe. Here you can say in conclusion, for the reasons I have mentioned above, I believe. This is also one of the ways by which you can start your conclusion. या तो फिर आप कह सकते हो in conclusion, I believe both the arguments, या तो फिर both the sides, या तो फिर both the opinions have their merits. On balance मतलब दोनों को अगर ताल अगर तराजू में जोखा जाए तो बैलेंस मतलब किसका ज्यादा है. However, it seems that, ऐसे करके आप लिख सकते हो, और मैंने इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा है. इन कंक्लूजन आई बिलीव बोथ द आर्ग्यूमेंट्स हैव देयर मेरिट्स. आप ऊपर जो देखते हो उसका मैंने उदाहरण दिया है. आई एम गिविंग एन एग्जांपल. ऑन बैलेंस, हाउएवर, it seems that schools should provide young learners with other vital skills, helping them develop more comprehensively. Is it getting clear? You can utilize it. Yeah, you can use that as well. This is, see, these are not the only ways to start the write the conclusion. These are, you know, few of the ways of those many ways that you can utilize. हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्टूडेंट्स? ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है जिससे आप कंक्लूजन को स्टार्ट कर सकते हो. बेहतरीन वर्ड्स है. आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एवरीबॉडी? इसको आप मोबाइल में रख सकते हो. whenever you are writing an essay, you can utilize this screenshot here. Very very important. Okay, then you can also start like this. Other ways, इससे भी ज्यादा अच्छे अच्छे कंक्लूजन के वर्ड्स है. हैविंग कंसिडर्ड बोथ व्यूज, देखिए बहुत अच्छा है. Having considered both views, I think, या तो फिर I believe that dash is or are of overriding importance. Of overriding importance, बहुत बेहतरीन वर्ड है. जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगा. Having considered both views, I believe that employees' soft skills are of overriding importance, contributing hugely to the development of a company. Clear? Then one more way. In conclusion, it seems to me that, जैसे कि in conclusion, it seems to me that it is more comfortable to live in a big city owing to advanced education systems and more employment opportunities. So I have given you an example of how to write a conclusion. या तो फिर, although there are still drawbacks of dash dash dash, I think its values are more significant. Is it getting clear? So this is also one of the ways by which you can start your conclusion. Or last ये तरीका, in conclusion, it is obvious to acknowledge dash dash dash, but the adverse effects of this development, या तो फिर trend, या तो फिर phenomenon, should not be overlooked. इसको memorize कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे phrases है. In conclusion, it is obvious to acknowledge the dominant benefits of humans' efforts to make products financially available. Okay. Yeah, many of you are asking for the last slide. Yeah, take the screenshot of this. Yeah, please let me know when you have taken the screenshot of the previous of this slide. This is the second way of writing the conclusion. Very very important. काफी अच्छे अच्छे words है. Yeah, have you taken it? Have you taken the screenshot of this slide? Okay. Now let us move on to the, yeah, let us move on to the third.
In conclusion, it is obvious to acknowledge dash dash dash, but the adverse effects of this development, very very important words, देखो development, trend, phenomenon, these are all very beautiful words that you can utilize depending upon the type of essay that comes in your examination, should not be overlooked. Clear? ये कब इस्तेमाल कर सकते हो इसको? फॉर एग्जाम्पल जहां पे लिखा है कि डिस्कस एंड गिव योर ओपिनियन के बदले सिर्फ ऐसा लिखा है डिस्कस बोथ द व्यूज. When the essay mentions that you're only supposed to discuss both the views, you're not supposed to give your opinion, तो आप इसको ऐसे start कर सकते हो. It is obvious to acknowledge dash dash dash, but the adverse effects of this development, trend, phenomenon should not be overlooked. जैसे कि in conclusion, it is obvious to acknowledge the dominant benefits of humans' effort to make products financially available for everyone. One part, but the adverse effects of this development, trend, phenomenon should not be overlooked. या तो फिर in conclusion, it appears to me that the merits of dash 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 are more notable. Notable मतलब ज्यादा है, noteworthy है, नोंदनीय है, than its drawbacks. इसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा. In conclusion, it appears to me that the merits of international tourism are more notable than its drawbacks. Clear? And finally, in conclusion, despite a few beneficial aspects of dash dash dash, the demerits are of greater significance from both individual and social or environmental angles. ये आप इस्तेमाल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मेल और फीमेल का आता है तब सोशल का इस्तेमाल कर सकते हो. अगर एनवायरनमेंट की बात चल रहा है, ऐसा कोई टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो आप ये एनवायरमेंटल एंगल्स ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे कि इन कंक्लूजन, इसका एग्जाम्पल, या इन कंक्लूजन, despite a few beneficial aspects of having a car, a TV, and a fridge, the demerits are of greater significance from both individual and environmental angles. तो देखो कितने सारे तरीके हैं. Just imagine how many words are there. Okay. Yeah, you can utilize that, Jeet. Yeah. या टू बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स है. देखिए काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग ये लिख सकते हैं. कथन, यू कैन यूटिलाइज दैट, बट लेट मी टेल यू, मैंने पहले भी बताया था कि दिस आर नॉट द ओनली वेज, दिस आर फ्यू ऑफ द मोर अवेलेबल वेज, बट इसमें काफी चीजें आ जाती है. लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है. सो आई वॉन्ट यू पीपल टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल. प्लीज लेट मी नो व्हेन यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. So there are 3 screenshots that you are supposed to take as far as conclusion. इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा आपको. सो प्लीज डोंट वरी, इससे ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, इसके ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं. इसमें काफी चीजें कवर हो जाएगी as far as your conclusion is concerned. Understood, students? Okay, shall I move on to the next slide? New share. Let me know when you are done. If you want me to repeat the 3 slides, I can also do that. You want me to repeat the 3 slides, the last 3? Let me know if you're not taken the screenshot. Okay, so this is the let me just a minute. This is the first one. Yeah, this is the first one. If you're not taken it, okay, please take the screenshot of this first slide. Then this is the second one. Yeah, have you taken the first one? If yes, then I'll go ahead with the next one. बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, यू कैन मेमोराइज देम, और इसको काफी एसेज में आप इस्तेमाल कर सकते हो. क्लियर? यू कैन यूटिलाइज दिस इन नंबर ऑफ एसेज. ओके, देन दिस इज द सेकंड स्लाइड. आप इसको यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू नॉट टेकन. एंड फाइनली द थर्ड स्लाइड. All these 3 slides are showing you the ways of writing an effective conclusion. Clear? Okay, I hope it is done, everybody, now. Okay, great students, very nice. Okay, now I'm going to go on to a very very important topic today. This is how to write a thesis statement in an IELTS essay. I hope you can see the new slide. Yes, everybody, can you see the new slide? Yes or no? Okay, great. Now I want everybody to concentrate on this. This is very very important. ये बहुत important है, इसको देखिए. मैंने बताया था what is the thesis statement. I hope you recall the thesis statement that I wrote in the previous essay.
जो सेकंड था, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ योर एसे, आई मीन इंट्रोडक्शन, इज बेसिकली नोन एज द थीसिस स्टेटमेंट. इसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वे ऑफ राइटिंग. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. Okay. Now, these are the five types of essays that comes in the real examination. Opinion essay, agree or disagree जिसको हम कहेंगे. Second type of essay is discuss both views and give your opinion. मैंने इसमें बताया था आपको दो तरीके के ऐसे आ सकते हैं. You are only supposed to discuss both the views, and the second type is discuss both views and give your opinion. The third type of essay is problem and solution. The fourth type of essay is advantages and disadvantages. उसमें एक और तरीका है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड गिव योर ओपिनियन. एंड फाइनली डबल क्वेश्चंस ऐसे जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कह सकते हो. सो these are the five types of essays that comes in the real examination. Now, what is a thesis statement? Very very important. Everybody please try to understand this. A statement which explains what your opinion is and what direction the essay follows. This is the most crucial sentence of your essay because this gives the indication to the examiner कि आपका essay किस दिशा में जा रहा है. It is very important to write a thesis statement for every essay. It has to be written in the introduction paragraph. The third point, don't describe the points. मैं वापस कहना चाहूंगा, आपको यहाँ पे पॉइंट्स को डिस्क्राइब नहीं करना है, मतलब उसको समझाना नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स को दर्शाना है. You need to just point them briefly. I repeat, you are not supposed to describe because that is what you are going to do in the body paragraphs. आप वो बॉडी पैराग्राफ्स में करने वाले हो तो उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे सिर्फ उसको पॉइंट करना है. एंड और थीसिस स्टेटमेंट में अगर आपका ओपिनियन पूछा गया है, you should also give your opinion in the thesis statement. I hope these things are clear to everybody. Yes or no? Very very important. These are very important essay topics and I'm taking everybody's. Don't leave. इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ. I hope my speed is fine. I hope my speed is fine. You want me to go faster or slower? Let me know. Because I'm going to take slower. You want me to go slower? Okay, fine. Not an issue. Okay. Okay, fine. Let us do it. चलिए. Now this is how, okay Eric, this is how your entire essay introduction is supposed to be written. I repeat, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए. The first statement is going to be the paraphrase statement. When I say paraphrase statement, you are writing the same topic. जो ऐसे की टॉपिक की लाइन है उसको आप अलग तरीके से लिखते हो, is what we call as paraphrase statement. This is the first statement of your essay, introduction as well. And the second statement is the thesis statement. Understood? The second statement is thesis statement. So ये जो पूरा जो टॉपिक है, this entire lecture is going to be discussing is what I'm going to discuss is about the thesis statement only. I'm not going to discuss the paraphrasing part. So don't worry about that part. And general overview, outline कहते हैं जिसको, ये optional है. You are not supposed to write an outline. It is not compulsory to write an outline statement in the introduction. You may not want. Clear? इसको आप लिख सकते हो जैसे कि दिस एसे इज गोइंग टू डिस्कस ये वगैरह वगैरह वगैरह. इसको लिखने की जरूरत नहीं है. लिखना चाहो तो देन ऑल्सो इट इज ओके. बट दो चीजें जो कंपलसरी है इंट्रोडक्शन में वो है पैराफ्रेज स्टेटमेंट एंड द सेकंड इज थीसिस स्टेटमेंट. नाउ व्हाई मेनी पीपल वुड वांट टू राइट द थर्ड स्टेटमेंट इज बिकॉज अगर आप दो ही सेंटेंस लिखते हो, देयर इज अ स्मॉल एंड यू नीड टू राइट मिनिमम 45-50 वर्ड्स लिखोगे तो अच्छा लगेगा. तो ऐसे केस में there is a big possibility that you will be required to write bigger sentences. और काफी लोग ऐसा है जिनका अगर वो bigger sentences लिखते हैं, they may commit grammatical mistakes. ऐसे केस में वो लोग थर्ड सेंटेंस लिख सकते हैं ताकि नंबर ऑफ वर्ड्स भी बरकरार रहे और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी ना हो. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस एक्सप्लेनेशन एवरीबडी? पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको? why I am saying that when you should be writing the thesis, I mean outline statement, मैं क्यों बता रहा हूँ क्यों लिखना है? क्योंकि अगर आप दो ही सेंटेंस लिखना है, there is a big issue. I mean there could be a issue wherein you can commit grammatical mistakes. इसके कारण आप लास्ट सेंटेंस लिख सकते हो. Anyway, these are the type of essays जहाँ पे आपको ओपिनियन की जरूरत है, जहाँ पे ओपिनियन की जरूरत नहीं है. जैसे कि यहाँ पे है डू यू एग्री और डिसएग्री. देखिए तो यहाँ पे आपको ओपिनियन देना पड़ेगा. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? यू विल हैव टू गिव योर ओपिनियन. डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस? क्या एडवांटेजेस का पल्ला भारी है डिसएडवांटेजेस से? तो आपको ओपिनियन पूछा है तो देना पड़ेगा आपको. एंड लास्ट, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. जैसे कि हमारा पुराना जो ऐसे था आज का ऐसे, पैसे ज्यादा खर्च करने चाहिए, बनाने चाहिए
या तो फिर लीजर टाइम प्रायोरिटी होनी चाहिए, और आपका अभिप्राय क्या है, व्हाट इज योर ओपिनियन। तो ये 4 टाइप के एसेज है जहां पे योर ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। और ये जो 4 एसेज है जहां पे ओपिनियन की जरूरत नहीं है, जैसे कि प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। causes and effects, you're only required to discuss causes and effects. Discuss both the views, सिर्फ लिखा है discuss both the views and there is no mention about giving your opinion, तो ऐसे केस में भी आपके ओपिनियन की जरूरत नहीं है। एंड फाइनली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सिर्फ लिखने हैं, देन ऑल्सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव योर ओपिनियन। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, अगर ऐसे का टॉपिक ऐसा है डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड गिव योर ओपिनियन, तो देना पड़ेगा। Are you getting the point? Okay. Any questions on this, everybody? Very, very important slides. You can take the screenshot of this as well. देखिए वीडियोस तो रिकॉर्ड हो रहा है, दिस वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये स्क्रीनशॉट होंगे तो आप उसको कभी भी रिफर कर सकते हो। वीडियो में आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा कि ये चीज मैंने कहाँ देखी थी। सो आई नो दैट वीडियो इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, but at the same time it is much more imperative for you that you can take screenshots. Okay, now this is the first type of essays, discuss both views. Now let me explain, let me ask you a question. Are you required to give your opinion in this essay or not? Discuss both views, are you required to give your opinion or not? Please let me know. Yes everybody, I want, रवि ने लिखा है यस। रवि कैसे लिखा आपने यस? कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको ओपिनियन देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव योर ओपिनियन, क्लियर? ओके, या ऑप्शनल है। ओके, सम पेरेंट्स थिंक इट इज गुड टू हैव मोबाइल फोन्स फॉर देयर चिल्ड्रन while others disagree with it. Discuss both these views. काफी पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि बच्चों के साथ अगर मोबाइल फोन रहता है तो इट इज फाइन, और काफी लोग ऐसा मानते हैं कि ये चीज गलत है। Discuss both the views, you are not required to give your opinion. So this is, in this type of essay, this is how you can write the thesis statement. आप जहां पे अपना ओपिनियन नहीं है, डिस्कशन वाला ऐसे है, तो आप यहाँ पे ये चीज ऐसे आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हो। वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंसेस। This essay will discuss the positive and negative aspects of giving smartphones to children with relevant examples. और दूसरा तरीका ये है, this essay will delve मतलब अंदर जाने की कोशिश करेगा into the arguments in favor of and against the use of smartphones by children with examples. Any questions, any doubts students? Yes or no? Let me know. I hope you have understood this. यहाँ पे आप देख सकते हो थीसिस स्टेटमेंट में मैंने अपना अभिप्राय ओपिनियन नहीं दिया है। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सेड दैट दिस एसे इज गोइंग टू डिस्कस पॉजिटिव्स और फेवर और अगेंस्ट giving your opinion. Clear or not everybody? Yes or no? Any questions? This is the second statement. I repeat, this is not your first statement. I am only discussing thesis statement. I hope you are clear with this aspect. Everybody, ये समझ तो रहे हो ना कि मैं ये आपको दूसरा स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, ये आपका पैराफ्रेजिंग नहीं है, ये इंट्रोडक्शन का कौन सा स्टेटमेंट है? कैन यू टेल मी दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग? इज आर वी डिस्कसिंग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन? आई वांट दिस टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम योर एंड। सेकंड स्टेटमेंट, एग्जैक्टली। सब लोगों ने लिखा सेकंड स्टेटमेंट। आई एम ओनली डिस्कसिंग द सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज अ थीसिस स्टेटमेंट। मैं पहला स्टेटमेंट नहीं डिस्कस कर रहा हूं। क्लियर? ओके, सो दिस इज हाउ ये डिस्कशन वाला ऐसे है, तो आप ऐसे लिखोगे। ओके, नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, discuss both views and give your opinion. Some people believe that it is important to give gifts to friends and family to show that we care about them. काफी लोग ऐसा मानते हैं कि हमें फ्रेंड्स और फैमिली को गिफ्ट देनी चाहिए ताकि उनको ऐसा लगे कि हम उनके लिए केयर करते हैं। Others think that there are better ways to show that we care. काफी ऐसा मानते हैं, उससे अलग काफी अलग तरीके हैं दिखाने के लिए कि हम उनकी केयर करते हैं। यहाँ पे है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। सो ऐसे केस में थीसिस स्टेटमेंट में आपका ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। इज इट गेटिंग क्लियर? योर ओपिनियन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो आप ऐसे लिखोगे, although it is believed by some that giving presents to loved ones is a way of expressing love and care, I opine, मतलब मैं ये मानता हूं that paying attention to the needs and wants, उनकी जरूरतों को और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उन पे ध्यान रखने से, एंड स्पेंडिंग टाइम विद देम, उनके साथ समय स्पेंड करने से, gives a greater sense of contentment and compassion. उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उनको ऐसा लगेगा कि मेरे पास कोई है।
any doubts or any questions my dear students? This is the thesis statement. एक पूरा ये पूरा statement जो है वो thesis statement है, जहाँ पे not only I am discussing both the types but I am also giving my opinion. Any questions, any doubts students? Yes or no? Very very important things I am teaching you today, very very important, क्योंकि ये डिस्कस ये तय करेगा कि आपका ऐसे किस तरफ जा रहा है. और let me tell you, I always tell my students that thesis statement will definitely give the very wonderful clue to the examiner about your ability in English. ये है ना, ये बताएगा एग्जामिनर को कि आपका कोहेजन और कोहेरेंस कैसा है. क्लियर? ओके. नाउ डू यू एग्री और डिसएग्री? डू यू एग्री और डिसएग्री वाला ऐसे है, जैसे तो कैसे करेंगे? सम पीपल थिंक दैट सेकेंडरी और हाई स्कूल स्टूडेंट्स शुड बी टॉट हाउ टू यूज मनी मैनेजमेंट एज इट इज एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल. डू यू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट? काफी लोग ऐसा मानते हैं कि हाई स्कूल के बच्चों को मनी मैनेजमेंट स्किल्स बचपन से ही सिखाई जाए, मतलब उनके टाइम से सिखाई जाए. क्या आप ये चीज को एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? दैट मीन्स यू आर रिक्वायर्ड टू गिव योर ओपिनियन. तो उसका आप दो तरीके से कर सकते हैं, कंप्लीटली एग्री, कंप्लीटली डिसएग्री. अगर ऐसा करते हो तो कैसे लिखोगे? आई कंप्लीटली अकॉर्ड. अकॉर्ड का मतलब एग्री विद द व्यू दैट प्यूपिल्स, मतलब कि बच्चे, मैंने पैराफ्रेजिंग किया है, जो स्टूडेंट्स के बदले मैंने प्यूपिल्स कर दिया, शुड बी एडिफाइड. वेरी नाइस वर्ड, एडिफाइड मतलब एडुकेटेड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मैनेजिंग मनी. फिर फाइनेंशियल लिटरेसी वुड हेल्प देम डिसन. डिसन मतलब उनको ये आइडिया देगा, व्यू देगा द पॉसिबल रिस्क एंड अवॉइड मनी स्ट्रगल्स इन द फ्यूचर. अब देखिए, मैंने दो सेंटेंसेस में थीसिस स्टेटमेंट लिखा है. यू कैन ऑल्सो कंबाइन दिस स्टेटमेंट्स इनटू वन स्टेटमेंट, जैसे कि आई कंप्लीटली अकॉर्ड with the view that pupils should be educated, edified about the benefits of managing money, and financial literacy would help them discern. Financial literacy अगर दी जाएगी, will help them discern the possible risk and avoid money struggles in the future. तो आप दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में भी लिख सकते हो. डिसन का मतलब मेक देम अवेयर, डिसन का मतलब होता है मेक देम अवेयर. इज इट गेटिंग क्लियर? अगर बच्चों को बचपन से ही फाइनेंशियल लिटरेसी समझाई जाए तो वो लोग भविष्य में रिस्क जो होते हैं उससे अवेयर होंगे और भविष्य में मनी स्ट्रगल्स कम होंगे. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स माय डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे, और अब बताइए मुझे होगा क्या कि इट विल हेल्प देम डिसन द पॉसिबल रिस्क एंड अवॉइड मनी स्ट्रगल्स इन द फ्यूचर. एनी क्वेश्चंस? डिसन का मतलब अवेयर. क्लियर? ओके. एनी डाउट्स ऑन दिस thesis statement, everybody? Clear or not? I want you people to go through this entire lecture tomorrow once again when the lecture will be uploaded on the website. मैं चाहूंगा ये सारा पूरा जो लेक्चर है उसको ठीक से उसको समझे, ताकि भविष्य में आपको प्रॉब्लम ना हो. नाउ डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस. ये बहुत अच्छे ऐसे आते हैं जहाँ पे ऐसा लिखा जाता है कि क्या लगता है कि एडवांटेजेस का पल्ला डिसएडवांटेजेस से भारी है या वाइसा वर्सा. These days many people prefer ready to eat food outside of their home rather than homemade food. काफी लोग बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं in comparison to homemade food. Do you think that this has more advantages or disadvantages? क्या इससे ज्यादा एडवांटेजेस है बाहर का फूड खाने में या तो फिर डिसएडवांटेजेस है? तो उसका थीसिस स्टेटमेंट कैसे होगा? तो देखिए, according to me the demerits of consuming ready to eat food items outbalance the merits. बहुत बेहतरीन सेंटेंस है मेरे हिसाब से. डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेज ऑफ कंज्यूमिंग रेडी टू ईट फूड, डिसएडवांटेज ऑफ रेडी टू ईट फूड आउट बैलेंस द मेरिट्स, मतलब के डिसएडवांटेजेस बाहर का खाना खाने से जो डिसएडवांटेजेस है उसका पल्ला भारी है इन कंपैरिजन टू एडवांटेजेस. मतलब कि बाहर खाना खाने से डिसएडवांटेजेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एडवांटेजेस. I believe that this trend will deteriorate मतलब खराब करेगा the health of the consumers in the long run. Clear? Long term. इसको आप एक ही सेंटेंस में लिख सकते हो. According to me, the demerits of consuming ready to eat food items outbalance the merits as
दिस ट्रेंड वापस लिखना है, लिखना नहीं है, आई बिलीव नहीं लिखना है, क्योंकि आपने पहली सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू मी लिख दिया है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? देन यू डोंट नीड टू राइट आई बिलीव. सो आप कैसे लिखोगे? हाउ आर यू गोइंग टू राइट? Okay. According to me, the demerits of consuming ready to eat food items outbalance the merits, as this trend will deteriorate the health of the consumers in the long term. Any questions, any doubts, students? बिल्कुल दिमाग से शांति से करो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. Any questions, any doubts? I am going very very slow today. बोलिए. Any questions? नॉलेज ही नॉलेज दे रहा हूं आप लोगों को आज. एनी क्वेश्चंस? लग रहा है सारे लोग स्क्रीनशॉट लगाने में बैठे हुए हैं. या एवरीबडी इज नॉट गिविंग मी आंसर्स. आर यू पीपल बिजी इन टेकिंग स्क्रीनशॉट्स? यस और नो? डिटोरिएशन मतलब खराब होना. आउटवे का मतलब पल्ला भारी है, वजन ज्यादा है. क्लियर? ओके. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, सो यू कैन यूटिलाइज दैट. क्लियर? ओके, ग्रेट स्टूडेंट्स, वेरी नाइस. यू पीपल आर सो कोऑपरेटिव. ओके. देन कम्स, ये थीसिस स्टेटमेंट किसका था? एडवांटेजेस डिसएडवांटेज. अब प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, मतलब प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस देना है आपको, अपना ओपिनियन नहीं देना है. ज्यादातर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में ओपिनियन देना ही नहीं होता. Many doctors say that old people are not getting enough physical exercise. What problems can this cause? What solutions can be suggested? यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम्स ये आती है. लेट मी एक्सप्लेन यू द टॉपिक फर्स्ट. काफी डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि बूढ़े लोगों को ज्यादा एक्सरसाइज नहीं मिल रही है, फिजिकल एक्सरसाइज. अब उसके कारण क्या है? कॉज मतलब कारण, और उसके सॉल्यूशंस क्या है. When you are writing thesis statement for problems and solution essay, you need to make sure कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों को आपको थीसिस स्टेटमेंट में बयां करना जरूरी है. यू नीड टू मेंशन देम इन द थीसिस स्टेटमेंट. तो थीसिस स्टेटमेंट देखिए ऐसा होगा. लैक ऑफ, याद होगा, याद, आई होप यू हैव यू रिमेंबर द टॉपिक. डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि बूढ़े लोगों को एक्सरसाइज ज्यादा नहीं मिल रही है. उसके कारण क्या है, और कारण क्या है, और उसका सॉल्यूशन क्या है. लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज मे हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ ऑफ द ओल्डस्टर्स, मतलब के बूढ़े लोग, along with weakening their bones and muscular strength. Is it getting clear? However, ये उसका cause है. Lack of, इससे cause may effects on the health of oldsters along with weakening their bones and muscular strength. However, encouragement and support of the family can motivate them to exercise. तो ये उसका solution आ गया. Is it getting clear? So ये उसका solution. तो you are mentioning the solution also in the thesis statement. So whenever you got problem and solution essay, you don't need to, you not only require to discuss the problem. सिर्फ इसको डिस्क्राइब नहीं करना है, सिर्फ पॉइंट करना है, क्योंकि डिस्क्राइब आपको सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में लिखना है. सो इन द सेकंड पैराग्राफ यू आर गोइंग टू डिस्कस द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, and in the third paragraph you are going to discuss about the solution. Clear or not? Okay. Then comes advantages and disadvantages. Simple, सिर्फ दो है. There are only two remaining. आपको याद होगा यहाँ पे सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव योर ओपिनियन. आपको ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है. मैनी स्पोर्ट्स प्लेयर्स एडवर्टाइज स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स. काफी जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं, जैसे कि विराट कोहली है, MS धोनी है, वगैरह वगैरह. उसके फायदे क्या है और गैर फायदे क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस? तो इसका थीसिस स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा. छोटा सा अगर लिखना है तो ऊपर का जो है वो मैं चाहूंगा आप दूसरा लिखे. दिस ट्रेंड सर्टेनली हैज सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स व्हिच विल बी डिस्कस्ड इन दिस एसे. आई वुड नॉट वांट यू टू राइट दिस. ये पहला जो टाइप है वो अच्छा नहीं है. आई वुड वांट यू टू राइट दिस. While it is undeniable that the image of the brand can be enhanced by celebrity endorsements, किसी भी ब्रांड की इमेज सेलिब्रिटी के एंडोर्समेंट मतलब के एडवर्टाइजमेंट से उसकी ब्रांड की इमेज बढ़ेगी, ये उसका फायदा है. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन द एडवांटेज. दिस मे डिक्रीज द टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग द स्पोर्ट विच कैन बी सीन एज द प्राइमरी डिसएडवांटेज. लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर स्पोर्ट्स प्लेयर्स अपना कीमती समय ये एडवर्टाइजमेंट में जाया करेंगे तो प्रैक्टिस कहाँ कर पाएंगे. तो ये जो प्रैक्टिस नहीं कर पाए ये उसका मेजर डिसएडवांटेज है. तो आप देख सकते हो इन द थीसिस स्टेटमेंट यू आर राइटिंग द एडवांटेज जो है
अब आपको ये एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इमेज ऑफ द ब्रांड कैन बी एनहांस। ये जो फायदा है, यू आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन द सेकंड पैराग्राफ। और उनको जो टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ नो गिविंग टाइम फॉर द एडवर्टाइजमेंट, और उसके कारण जो स्पोर्ट्स में जो प्रॉब्लम होगी, प्रैक्टिस नहीं हो कर पाएंगे, ये जो उसका डिसएडवांटेज है, डेट यू आर गोइंग टू राइट इन द थर्ड पैराग्राफ एंड फाइनली द कंक्लूजन। सो देखिए, थीसिस स्टेटमेंट देखते ही the examiner will come to know कि what you are going to write in the second paragraph and in the third paragraph. Any questions, any doubts, my dear students? Clear? Yes or no? Explain, understood or not? क्लियर? आई एम ट्राइंग टू गो स्लो ताकि आपको पता चले। अंडरस्टूड? तो आप देख सकते हो। अब देखिए ये, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपने जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे हैं इन द थीसिस स्टेटमेंट, वही डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आपको बॉडी पैरास में एग्जाम एक्सपांड करना है। यू कैन नॉट गिव अ न्यू एडवांटेज एंड न्यू डिसएडवांटेज, तो वरना पूरा थीसिस स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आई रिपीट, whatever advantage or disadvantage you have mentioned in the thesis statement should only be described further in the body paragraphs. Don't try to be innovative in writing more. सर मुझे बहुत अच्छे आइडियाज आ गए तो मैं बड़ा भावुक हो गया तो मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अंडरस्टूड? whatever you write in the thesis statement has to be mentioned in the body paragraphs. Okay, causes and effects बहुत बहुत कम है, causes and effects. Okay. इन मैनी कंट्रीज पीपल आर लिविंग इन ए थ्रो अवे सोसाइटी। थ्रो अवे सोसाइटी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप चीज खाते हो, फेंक देते हो, या तो फिर थ्रो अवे सोसाइटी का मतलब, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ थ्रो अवे सोसाइटी वेयर थिंग्स आर यूज्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड थ्रोन अवे? थ्रो अवे सोसाइटी का कोई एग्जांपल याद आ रहा है? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रो अवे सोसाइटी? एनीथिंग दैट यू कैन सी, आपके एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे थ्रो अवे सोसाइटी है? एवरीबडी, नो आइडिया? थ्रो अवे सोसाइटी, ये क्या कर रहे हो आप लोग? ओके, मैं एक सुंदर सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आपके घर में, आपके पिताजी के घर में अगर आप रहते हो, तो उनका जो बेड होता है या डाइनिंग टेबल होता है या तो फिर बेड होता है, तो आप तो शायद यूज करते हो, आपके पिताजी भी यूज करते थे और आपके दादाजी भी यूज करते थे, इजंट इट? जो बेड बनता था या तो फिर डाइनिंग टेबल जो बनता था, was used by your grandfather, by your dad and by yourself, you yourself, isn't it? So that was the durability of those things, no? It used to be made up of pure tick, wood tick, Burma wood, I mean साग, वो साग का बनता था, क्योंकि आप चाहते थे वो सालों साल चले। और अभी जो फर्नीचर आए हैं, आप होम टाउन में जाते हो, यू गो टू होम टाउन, यू गो टू फॉर एग्जांपल जहाँ पे जाते हो, यहाँ पे रेडीमेड फर्नीचर बनते हैं, वो पार्टिकल बोर्ड से बनते हैं। आपने 5 साल ये यूज किया, 5 साल के बाद वो किल निकलना चालू हो जाता है। इज इट गेटिंग क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे थ्रो अवे थिंग्स। थ्रो अवे का मतलब जो जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा नहीं है, एग्जैक्टली exactly, जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा नहीं है उसको हम थ्रो अवे बोलते हैं। सो इन मेनी कंट्रीज पीपल आर लिविंग इन ए थ्रो अवे सोसाइटी वेयर थिंग्स आर यूज्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड थ्रोन अवे। इज इट गेटिंग क्लियर? ओके, या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस एंड व्हाट प्रॉब्लम्स डज इट लीड टू? उसके कॉजेज क्या है और उससे क्या प्रॉब्लम्स आएगी, इजंट इट? तो उसके लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका थीसिस स्टेटमेंट? देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दिस, क्योंकि टॉपिक था कॉजेज एंड इफेक्ट्स, तो इसमें देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दिस सच एज द एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड पीयर प्रेशर। इज इट गेटिंग क्लियर? क्योंकि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आ गई है, तो और पीयर प्रेशर का मतलब लोग भी इस्तेमाल करते हैं तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है जिसमें फटाफट चीज़ें बनती है, तो ये रीज़न है। और उसके गैर फायदे क्या है, सॉल्यू आई मीन इफेक्ट्स क्या है? दिस विल हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस, खराब कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट, परिणाम ऑन द एनवायरमेंट एंड विल बर्डन द इंडिविजुअल्स फाइनेंशियली, और उससे आपके फाइनेंस पे भी काफ़ी बर्डन पड़ेगा। भले ही फॉर एग्जाम्पल अगर आप डाइनिंग टेबल बनाते हो और वो 20 साल चलता है, थोड़ा सा महंगा भी पड़ेगा लेकिन वो 20 साल चलेगा, और उससे थोड़ी सी 75% कीमत में आपने पार्टिकल बोर्ड वाला डाइनिंग टेबल ले लिया, तो 5 साल के बाद वापस आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बर्डन द इंडिविजुअल्स फाइनेंशियली। तो ये थीसिस स्टेटमेंट है कॉजेज एंड इफेक्ट का। याद रहे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन कॉजेज एंड इफेक्ट में आपके जो कॉज है और इफेक्ट है वो थीसिस स्टेटमेंट में मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी क्वेश्चंस
और डाउट्स? यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, ओनली द थीसिस स्टेटमेंट। एनी क्वेश्चंस और डाउट्स? मेरे हिसाब से ये लेक्चर के बाद सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग नाउ? लेट मी नो। सब लोग स्क्रीनशॉट लगाने में बैठे हैं। ओके ओके ओके। एंड फाइनली डबल क्वेश्चंस ऐसे हैं, डबल क्वेश्चन ऐसे हैं। ओके, सो अगर क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं तो कैसे करेंगे आप? शॉपिंग हैज बिकम अ फेवरेबल पास टाइम अमंग यंग पीपल। शॉपिंग ऐसी हो गई है कि भाई अगर आपके पास टाइम है तो आप शॉपिंग करने चले जाते हो। वाई डू यू थिंक दिस इज लाइक इट इज लाइक दैट? ऐसा क्यों है? एंड डू यू थिंक दैट दे मस्ट बी एनकरेज टू डू अदर थिंग्स रादर देन शॉपिंग? तो टॉपिक ये है कि शॉपिंग अब यंग लोगों की पास टाइम हॉबी हो गई है। ये कारण क्या है उसका? क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्या उनको एनकरेज किया जाए ताकि वो शॉपिंग के अलावा भी कोई दूसरी चीजें करे? दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, बट यू नीड टू मेक श्योर इन द थीसिस स्टेटमेंट यू नीड टू गिव आंसर्स ऑफ बोथ द क्वेश्चंस। तो आप कैसे लिखोगे इसको? The foremost reasons why youngsters prefer shopping as their favorite hobby are the latest fashion trends in the market and peer influence. ये जो sentence है is giving the answer of question number 1. Check it out properly. कारण क्या है कि ये उनकी फेवरेट हॉबी हो गई है क्योंकि वो फैशन ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं और उनके आजू बाजू लोग हैं वो भी अगर उनसे भी इन्फ्लुएंस होकर ये चीज करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्या उनको एनकरेज किया जाए ताकि वो दूसरी चीजें करे? तो लिखा है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यंग पीपल मे एक्वायर न्यू स्किल्स। वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं शॉपिंग के, उससे अच्छा बेहतर है कि वो नई स्किल्स को सीखे और एंड स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली, या तो फिर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। तो दिस टू सेंटेंसेस हैव गिवन द आंसर्स ऑफ दिस टू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ऐसा क्यों है, और दूसरा क्वेश्चन क्या उनको अलग चीजों के लिए प्रेरित किया जाए या तो फिर उनको करनी चाहिए। सो दिस एंटायर थीसिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी द सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ऑफ योर एसे। इसको आप एक ही सेंटेंस में लिख सकते हो, बट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि अगर मैं पूरा एक सेंटेंस लिखूंगा देयर इज अ स्मॉल पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स, यू कैन डिवाइड दिस इनटू टू सेंटेंसेस एज इट इज डन ओवर हियर। मैंने बताया वैसे इसको आप एक स्टेटमेंट सेंटेंस में भी लिख सकते हो। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? या दिस आर ऑल द लास्ट स्टेटमेंट्स। ये आपके इंट्रोडक्शन के लास्ट स्टेटमेंट्स होंगे अनलेस एंड अनटिल यू आर गिविंग एन आउटलाइन स्टेटमेंट। क्लियर? या तो फिर ये इंट्रोडक्शन के लास्ट स्टेटमेंट्स होंगे। या एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? सो दिस इज इट। थैंक्स स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए कोई डाउट्स हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी टुमारो। इट्स ऑलमोस्ट 9:35 according to my watch, but I hope you enjoyed the sessions, everybody. Yeah, you can say however. Yeah, you can say however, Sushant. Okay, I hope you enjoyed the entire session today. Clear? या आउटलाइन तभी लिखना है जब वर्ड्स कम है आपके। क्लियर? ओके। या थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, यू पीपल वर ग्रेट। सो अब इसको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से इसको देखना है। यू नीड टू गो थ्रू दिस प्रॉपरली। अगर कल मेरा रिकॉर्डिंग आता है, प्रॉब्ली इट शुड गेट अपलोडेड टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। आई वांट यू पीपल टू गो थ्रू इट प्रॉपरली। इसको ठीक से देखो तो उससे काफी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुशांत। ओके ग्रेट, थैंक यू स्टूडेंट्स।